Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 9 of mathematical statistics. In the last class, we discussed introduction to probability, that the probability is number of successes divided by the total number of outcomes, and also when we perform a random experiment n times and out of which h are favorables or the successes, then h over n was the probability. We also discussed counting rules in which combinations were discussed, and then the axioms of probability, and we solved some examples. In today's agenda, we will review the last lecture and then we will continue with a probability. In the last lecture, we defined combinations. The definition was when we have n different objects and we want to have combinations containing r objects, then we will have n CR and choose R such combinations where R is less than n. Now n choose R is equal to n factorial over R factorial over n minus R factorial. In combinations, the difference with permutation was that the order did not matter. Like A, B, C and B, A, C are considered to be same. In permutation, there are two different permutations, but in combination, they are considered to be same. So we use this formula, and I also told you how to solve it on a calculator. For example, if I have n equal to 10 and r equal to 3, then on a calculator, how will you solve this formula is you will press enter 10, then in most calculators it's with shift key, you press the shift key and find the press n CR and then you press 3 and you should get an answer which is equal to 10 factorial over 3 factorial over 10 minus 3 factorial. You should locate this button of NCR on your calculator and see how it works, and you should practice on it. Next, probability. The definition of probability was if there are n equally likely possibilities. The important thing here is equally likely possibilities of which one must occur and S are regarded as favorable or successes, then the probability of success is given by S over n. कि n इक्वली लाइकली पॉसिबिलिटीज हैं, सारे के सारों की प्रोबेबिलिटीज सेम हैं या पॉसिबल है कि कोई भी आ जाए, इक्वल चांस है सबका आने का, और s वो आउटकम्स हैं जो हमारे लिए फेवरेबल हैं. तो फिर हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए s ओवर n कैलकुलेट कर लेंगे. एग्जाम्पल ये हो सकती है कि हमारे पास एक सैंपल स्पेस है फॉर अ डाई विच इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और हम अज्यूम करते हैं इन तब के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, दे आर इक्वली पॉसिबल्स. देन अगर मैं ये कहूँ कि इवन नंबर्स को देखना है, तो इवन नंबर्स हैं 2, 4 और 6, तो 3 मेरे पास इसमें आउटकम्स हैं इस इवेंट में जो कि इवन नंबर है, और टोटल आउटकम्स 6 थी, तो मेरे लिए प्रोबेबिलिटी
3/6 बनेगी 3/6 which is equal to 1/2. Next जो एग्जाम्पल डेफिनेशन है, इफ एन इवेंट कैन अकर इन h डिफरेंट पॉसिबल वेज, एक इवेंट है वो h डिफरेंट पॉसिबल वेज में अकर हो सकता है, ऑल ऑफ विच आर इक्वली लाइकली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज h/n, ये क्लासिकल अप्रोच है. एंड इफ in n repetitions of an experiment, n is very large, an event is observed to occur in h of these, the probability of the event is h/n. इसकी एग्जांपल मैंने पहले भी दी थी. अगर एक कॉइन को आप टॉस करते हैं, 1,00,000 दफ़ा टॉस करते हैं और आप देखते हैं कि 50,000 दफ़ा उसमें हेड आया, तो प्रोबेबिलिटी जो होगी हेड आने की वो 50,000/1,00,000 होगी. 50,000/100,000 या 1,00,000, और वो हमारी फ्रीक्वेंसी अप्रोच है. फिर हमने एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात की थी लास्ट लेक्चर में. टू ईच इवेंट AI we associate a real number PAI, then P is called the probability. एसोसिएट मतलब हम उसे असाइन कर देते हैं. लेट्स से अभी हम इसको एज्यूम करते हैं जैसे हमने असाइन कर दिया. एंड PAI द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट AI if the following axioms are satisfied. PAI is the probability of event AI if the following axioms are satisfied. For every event A, PAI is greater than equal to 0. It's a positive number. The probability is always positive. For the certain event S, the probability is equal to 1. For any number of mutually exclusive events A1, A2 up till AN, then the probability of A1 union A2 union A3 up to union AN is equal to probability of A1 plus probability of A2 plus up till probability of AN. Note, two events A and B are mutually exclusive or disjoint if A intersection B is equal to phi. That is a null set. Mutually exclusive होने के लिए क्या जरूरी है कि वो एक null set हो. एक एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर में की थी, वो ये थी, a die is loaded in such a way that an even number is twice as likely to occur as an odd number. तो ये equally likely नहीं है, इसमें even number के आने के chances double हैं to odd numbers. If E is the event that a number less than 4 occurs on a single toss of the die, find probability of E. इस एग्जाम्पल को जब हमने सॉल्व किया था तो यह आया था, जिसमें हमने सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखी which was 1, 2, 3, 4, 5 and 6. फिर हमने इन सब को असाइन की प्रोबेबिलिटी W और इवन नंबर को ट्वाइस प्रोबेबिलिटी असाइन एसोसिएट कर दी 2W, 3 को ऑड नंबर को W, इवन नंबर को 2W, ऑड नंबर को W एंड इवन नंबर को 2W. जब इन तमाम प्रोबेबिलिटीज को हमने ऐड किया तो ये बनती है प्रोबेबिलिटी ऑफ द सैंपल स्पेस, सो इट शुड बी इक्वल टू 1. फिर हमने सॉल्व किया इसको, बिकॉज देयर इज वन इक्वेशन इन वन अननोन विच इज द W. वी सॉल्व दिस इक्वेशन एंड वी फाउंड that is equal to 9W is equal to 1, which gives us W equal to 1/9. That means the probability of getting a 1 is 1/9, probability of getting 2 is 2/9, probability of getting 3 is again 1/9, probability of getting 4 is 2/9, probability of getting 5 is 1/9, and probability of getting 6 is 2/9. Then we define the event which was required. If event E, if E is the event that a number less than 4 occurs,
और लेस देन 4 क्या होता है सैंपल स्पेस में 1 2 3 और 4 हमने इंक्लूड नहीं करना बिकॉज इट्स लेस देन 4. देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3. ये सम के तरीके से हम निकाल रहे हैं, एडिशन से निकाल रहे हैं, बिकॉज जब 1 आता है तो 2 नहीं आ सकता, जब 2 आता है तो 1 नहीं आ सकता. तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 या इवेंट या 1 एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 दोनों डिसजॉइंटिंग है, दोनों साइमल्टेनियसली अकर नहीं हो सकते, इसलिए हम इनको ऐड कर लेते हैं. जब इनको ऐड करते हैं तो आंसर हमारा आता है 4/9. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई which is number less than 4 is equal to 4/9. इसी एग्जाम्पल को हमने रिपीट करने का मकसद यह था कि हमें इसमें से कुछ वैल्यूज चाहिए जो कि हम आगे यूज करेंगे. In the previous example, let A be the event that an even number turns up and let B be the event that a number divisible by 3 occurs. सो हम पहले फिर हम हर प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं. तो क्योंकि डाइस था तो सैंपल स्पेस क्या बनेगी 1 2 3 4 5 6 और सैंपल स्पेस क्या होती है ऑल पॉसिबल आउटकम्स of an experiment. और एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट. सो दैट ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम सैंपल स्पेस कह रहे हैं इस जगह पे. और फिर हमने कहा, हमने जो प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट की थी हमने पहले असाइन किया था प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इक्वल टू W और W हमारे पास आया था 1/9. सो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 भी 1/9 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 जो है वो 2/9 थी बिकॉज इट्स डबल देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर. इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी डबल है टू ऑड नंबर्स. तो इसी तरह हम यही चलेगा 3 और 4 के लिए. 3 4 5 6 के लिए भी इसी तरह होगा. ऑड नंबर्स की 1/9 होगी और इवन नंबर्स की भी 2/9 होगी. अगर हम लिख लें तो आसानी हो जाएगी. प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इज 1/9, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इज इक्वल टू 2/9, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल बी इक्वल टू 1/9 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 विल बी 2/9. जब ये लिख लिया तो नेक्स्ट हमारे पास दो इवेंट्स हैं. इवेंट ए जो कि गिवन है, event let A be the event that an even number occurs. और event A क्या है even number which is 2 4 और 6. और जैसा कि हमने बताया था कि कोई भी इवेंट जो है वो सबसेट होता है ऑफ द सैंपल स्पेस. तो 2 4 और 6 क्योंकि सैंपल स्पेस में इवन नंबर्स क्या थे 2 4 और 6 ही मौजूद थे, हमने लिख लिए. और B is the event that a number divisible by 3 occurs. तो सैंपल स्पेस में तमाम नंबर्स को हम 3 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कौन सा नंबर एग्जिस्ट करता है. तो 1/3 नहीं, 2/3 फ्रैक्शन में आता है, 3/3 1 आता है, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 3 है. इसी तरह 4 डिविजिबल बाय 3 नहीं है, 5 भी डिविजिबल बाय 3 नहीं है और 6 डिविजिबल बाय 3 है. तो B is equal to 3 and 6. So event B, आप पढ़ें आप, let B be the event that a number divisible by 3 occurs. अब हमने प्रोबेबिलिटी किस किस की फाइंड करनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B. सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B फाइंड करना चाहते हैं और सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B फाइंड करना चाहते हैं. तो हम इस रीजन में लेफ्ट हैंड साइड पे A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं. तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है A यूनियन
बी। और यूनियन का हम अगर याद करें आप, एक दो लेक्चर्स पहले हमने यूनियन डिस्कस किया था। यूनियन में क्या होता है, दोनों इवेंट्स के एलिमेंट्स इंक्लूसिव होते हैं और रिपीटेशन नहीं होती। तो ए यूनियन बी में तमाम एलिमेंट्स ऑफ ए भी मौजूद होंगे और तमाम एलिमेंट्स ऑफ बी भी मौजूद होंगे और रेपिटेशन नहीं होगी। तो ए के हैं 2, फिर बी का हम 3 लिख लेंगे यहाँ पे, ए का 4, सिर्फ ऑर्डर में लिख रहा हूँ, अगर आप इसको 2, 4, 6 भी लिख लें पहले फिर बी के लिखें तब भी कोई हर्ज नहीं है। तो हम 2, 3, 4 एंड 6। अब बी के भी इसमें तमाम मौजूद हैं। ए के देखें 2, 4 और 6 मौजूद है, बी के 3 और 6 भी मौजूद हैं। अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब क्योंकि 2 और 3 डिसजॉइंट हैं, 3 और 4 भी डिसजॉइंट हैं, 4 और 6 भी डिसजॉइंट हैं और ये आपस में भी एक दूसरे के साथ भी डिसजॉइंट है, यानी कि 4 और 2 भी डिसजॉइंट है। तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, और आप इसको ऐड कर सकते हैं, विच इज 2 की क्या थी 2/9, 3 की 1/9, 4 की अगेन 2/9 और 6 की भी 2/9। इनको ऐड करें, एलसीएम लें, एलसीएम 9 आ जाता है और 2 + 1 3 + 2 5 + 2 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 7/9। यह हो गया। इसे दूसरे एग्जाम जो इसका क्वेश्चन था वो क्या था, ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे और ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास जो दो इंटरसेक्शन क्या था हमारे पास, इफ यू रिकॉल, इंटरसेक्शन वाज वो एलिमेंट्स ऑफ ए और बी जो कि दोनों में मौजूद हैं, दोनों में कॉमन है। तो इस केस में देखें, अगर 2 दोनों में नहीं है, 4 दोनों में ए में है, बी में नहीं है, 6 जो है वो ए में भी है और बी में भी है, और 2 जो था वो सिर्फ ए में था, बी में मौजूद नहीं था। तो ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ हमारे पास एक एलिमेंट आता है विच इज 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 विच इज इक्वल टू, इवन था तो 2/9। सो हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2/9। यहां पे अगर हम ये दो लफ्ज याद रखें 7/9 और 2/9, तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आगे में हमें इसकी हेल्प मिलेगी। इसको रेज करते हैं, हम फिर दोबारा से लिखते हैं कि हमारे पास ए क्या था, ए वॉज 2, 4 and 6 and B was equal to 3 and 6। अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी अब आपसे कहूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट करें तो वो क्या आती है, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। तो इट इज 2/9 प्लस 2/9 plus 2/9 which is 6/9। On the other hand, probability of B अगर कैलकुलेट करूं तो वो आता है probability of 3 plus probability of 6। तो इसको अगर देखें तो probability of 3 is 1/9 and probability of 6 is 2/9 which is 3/9। हम इसको फर्दर अभी रिड्यूस नहीं करते टू 1/3,
but we'll keep it like this. So this is probability of B and this is probability of A. Now जो हमारा पहला पार्ट था, क्वेश्चन था, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी था. तो अगर मैं इसको यूं लिखूं कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्या ये हो सकता है? तो आप इसको लिखें तो ये बनता है 6/9 प्लस 3/9 विच इज इक्वल टू 9/9 विच इज इक्वल टू 1, जो कि हमारे पुराने आंसर से जो हमने पिछले पेज पे किया था वो था 7/9. तो ये आंसर हमारा गलत आ गया. तो इस प्रॉब्लम को हम यूं नहीं कर सकते, ये गलत है. क्या आप बता सकते हैं कि क्यों गलत है? जी, इसको अगर गौर से देखें तो ए और बी में 6 कॉमन है, तो इसलिए ए और बी डिसजॉइंट नहीं है. दे आर नॉट डिसजॉइंट. जो लॉ था, रूल था यूनियन का, वो ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 अप टिल यूनियन AN was equal to probability of A1 plus probability of A2 plus probability of A3 up to probability of AN. तो ये जो रूल था ये सिर्फ तब पॉसिबल था जब A1 इंटरसेक्शन A2 was disjoint. That means तमाम के तमाम जो हैं वो आपस में डिसजॉइंट हों, एक दूसरे के साथ उनका कोई एलिमेंट कॉमन ना हो. क्योंकि हमारे केस में कॉमन थे एलिमेंट्स, इसलिए हमारा जवाब गलत आ रहा है. अगर कॉमन ना होते तो फिर चाहे हम जो हमने पिछली स्लाइड पे किया था तरीका, उससे यू कैलकुलेट करते या इस फार्मूले से कैलकुलेट करते कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से, तब भी दोनों में आंसर सेम आना चाहिए था. सो जब भी आप ये रूल अप्लाई करें, यूनियन वाला रूल अप्लाई करें, तो यकीन दहानी कर लें कि इंटरसेक्शन जो है वो नल सेट हो, तमाम के तमाम इवेंट्स जो हैं वो क्या हों, डिसजॉइंट इवेंट्स हों. तो इस पे प्लीज इसको इस्तेमाल करने से पहले, इस फार्मूला को इस्तेमाल करने से पहले हमेशा देख लीजिएगा. एल्स जो हमारा पुराना मेथड है कि हम हर एलिमेंट्स निकाल लेते हैं, ए यूनियन बी के एलिमेंट्स निकाल लेते हैं और उसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके हम देख लेते हैं, तो वो वैलिड है फॉर बोथ डिसजॉइंट और नॉट डिसजॉइंट. ये जो लॉ था यूनियन वाला वो सिर्फ डिसजॉइंट के लिए वैलिड है. इसको फर्दर हम देखेंगे आगे. अगर ये डिसजॉइंट ना हो तो इस लॉ को कैसे मॉडिफाई किया जाता है. Let's go to an example. A statistic class for engineers consists of 25 industrial, 10 mechanical, 10 electrical and 8 civil engineering students. एक क्लास है स्टैटिस्टिक्स की जिसमें से 25 स्टूडेंट्स हैं वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के हैं, 10 मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं, 10 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं और 8 सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं. If a person is randomly selected by the instructor to answer a question, अगर किसी स्टूडेंट को इंस्ट्रक्टर जो है, टीचर है, रैंडमली एक सवाल पूछता है, तो हमने ये चेक करना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट चोजन इज एन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मेजर, कि जिस स्टूडेंट्स को हमने सवाल पूछा वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है. और दूसरा पार्ट है अ सिविल इंजीनियरिंग और एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेजर, यानी कि वो इलेक्ट्रिकल या सिविल में इंजीनियरिंग कर रहा है. तो पहला हम लिखते हैं इसको. तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के टोटल स्टूडेंट्स इज आई लिख लेते हैं, इनको 25 हैं.
मैकेनिकल इंजीनियरिंग को M लिख लेते हैं, वो 10 हैं। इलेक्ट्रिकल को E लिखते हैं, वो भी 10 स्टूडेंट्स हैं। और सिविल इंजीनियरिंग के 8 स्टूडेंट्स हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के 25, मैकेनिकल के 10, इलेक्ट्रिकल के 10 और सिविल के 8। सो टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास कितने हुए? टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास, इन सब का सम आ जाएगा। स्टूडेंट्स हैं 25 जमा 10 जमा 10 जमा 8 which is equal to 45 plus 8 53। अब अगर 53 लोगों की क्लास है, इमेजिन करें एक क्लास में 53 लोग बैठे हुए हैं और रैंडमली बैठे हुए हैं। टीचर किसी एक स्टूडेंट से सवाल पूछता है और वो क्या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है या नहीं है। क्योंकि उस पूरी क्लास में 25 लोग जो हैं वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के हैं, तो प्रोबेबिलिटी की जो पहली डेफिनेशन है विच इज फेवरेबल ओवर द टोटल, जो है सक्सेसेस ओवर द टोटल पॉपुलेशन, वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम। तो प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट जिससे सवाल पूछा गया है वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का है, आई का है, दैट विल बी 25/53। तो ये तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के आगे सेकंड पार्ट, यानी कि दिस वाज द आंसर टू पार्ट ए। सेकंड पार्ट अगर करें हम बी, तो उसमें कहते हैं क्या सिविल इंजीनियरिंग और एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेजर, कि जो स्टूडेंट है या सिविल इंजीनियरिंग का हो या इलेक्ट्रिकल का हो। दैट मीन्स अब हमें वो प्रोबेबिलिटी चाहिए जिसमें चाहे सिविल का इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो यूनियन इलेक्ट्रिकल का हो। तो इस केस में अगर देखें तो टोटल स्टूडेंट्स जो बनेंगे मेरे सिविल प्लस इलेक्ट्रिकल के, वो बनेंगे सिविल के 8 हैं और इलेक्ट्रिकल के 10 स्टूडेंट्स हैं। सिविल इंजीनियरिंग के 8 स्टूडेंट्स और इलेक्ट्रिकल के 10 स्टूडेंट्स, तो टोटल मेरे पास बन गए 18 स्टूडेंट्स। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सिविल प्लस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज इक्वल टू 18 और टोटल जो स्टूडेंट है इन द क्लास वो थे 53। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई मेरे पास 18/53। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, सिविल यूनियन इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू 18/53। स्टैटिस्टिकली इस तरह से लिखना ज़्यादा बेहतर है। इस तरह से सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताया गया है कि ये हमने ऐड करके लिखे थे। ये वाला तरीका जो था ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था। हमें लिखना सी यूनियन ई लिख चाहिए कि दोनों की प्रोबेबिलिटीज अब ऐड हो गई हैं। और इस प्रॉब्लम को आप एक और तरीके से भी देख लें। अब देखें जो स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का होगा वो सिविल का नहीं हो सकता, और जो सिविल का होगा वो इलेक्ट्रिकल का नहीं हो सकता, इसलिए दोनों के डिसजॉइंट है। अगर मैं इनको अलग-अलग करूं, कैलकुलेट करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिविल कैलकुलेट करूं, तो वो क्या थी 8/53, क्योंकि 8 स्टूडेंट्स थे सिविल इंजीनियरिंग के और 53 स्टूडेंट्स थे टोटल इन द क्लास। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल के 10 स्टूडेंट्स थे और टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास 53 थे, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सिविल यूनियन इलेक्ट्रिकल जो बनती है वो इन दोनों का एडिशन होगी, बिकॉज सिविल और इलेक्ट्रिकल के इंजीनियर स्टूडेंट्स में कोई ये डिसजॉइंट स्टूडेंट्स हैं। जो स्टूडेंट सिविल में है वो इलेक्ट्रिकल में नहीं हो सकता, जो इलेक्ट्रिकल में है वो सिविल में नहीं हो सकता। तो दोनों को अगर ऐड करें तो बनता है 8/53 प्लस 10/53, तो टोटल आ गया आपके पास अगेन 18/53। इन कंपैरिजन टू द लास्ट एग्जांपल, जो पिछली हमने एग्जांपल की थी उसमें ये कंडीशन ट्रू नहीं थी, बिकॉज वो दोनों इवेंट्स तो थे डिसजॉइंट थे। इस केस में दोनों इवेंट्स डिसजॉइंट नहीं थे पिछली एग्जांपल में। इस एग्जांपल में दोनों इवेंट्स डिसजॉइंट हैं, तो इसलिए ये प्रोबेबिलिटी हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पोकर की है। पोकर इज अ कार्ड गेम। इन अ पोकर हैंड
कंसिस्टिंग ऑफ 5 कार्ड्स। पोकर एक कार्ड गेम है जिसमें 5 कार्ड्स होते हैं हर प्लेयर के पास। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ होल्डिंग 2 एसेस एंड 3 जैक्स। हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने हैं? 5। अगर 2 उसमें से ए हो जाएं और 3 जैक हो जाएं। अब कार्ड्स की एक एग्जांपल है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड कार्ड्स का क्या है। कार्ड्स जो होते हैं, ताश जिसको हम कहते हैं, उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से स्टार्ट कहां से होते हैं? ए 1 2 अप टिल 9 10, फिर जे, फिर क्यू और के, इस तरह से होते हैं। अब इसमें 4 कलर्स होते हैं, 2 रेड के होते हैं, 2 ब्लैक के। तो 4 ए होंगे और 4 ही जैक होंगे। आप इनको अगर काउंट करें तो 10 11 12 13, ये भी 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 है। तो टोटल हमारे पास बनते हैं ये 52 कार्ड्स। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास 5 कार्ड्स हैं। एक जो पोकर प्लेयर है उसके हाथ में 5 कार्ड्स हैं। हमें वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट उसके हाथ में 2 ए कार्ड्स हैं और 3 जैक कार्ड्स हैं। सबसे पहली बात हम देखते हैं कि 2 ए कार्ड, 4 में से उसके पास कोई से भी 2 ए कार्ड हो सकते हैं। इन 4 एज में से उसके पास कोई भी 2 ए हो सकते हैं। तो वो कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं मेरे पास? 4 कॉम्बिनेशन 2, और वो बनता है दिस आर 4 एस। तो टोटल 4 में से जब हमने शफलिंग की, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया कार्ड्स, तो उसके पास 2 ए चले गए। कौन से 2 गए? वो क्या कॉम्बिनेशन है? 4 कॉम्बिनेशन 2। वो बनता है 4 फैक्टोरियल अवर 2 फैक्टोरियल अवर 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, विच इज 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल अवर 2 into 1 into 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल 2। तो ऐसे 6 कॉम्बिनेशन बनते हैं जो उसके पास ए जा सकते हैं। यानी कि एक रेड जा सकता है, दूसरा भी रेड जा सकता है, एक रेड दूसरा ब्लैक, फिर ये रेड क्योंकि डिफरेंट होते हैं, ये रेड 1 होता है, ये रेड 2, रेड 3, ब्लू ब्लैक 1 एंड ब्लैक 2। तो ये 6 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। सिमिलरली जैक्स जो हैं, जे जिसको बोलते हैं हम, उसको जैक्स कहते हैं, वो उसके पास 3 होने चाहिए। तो 4 में से कौन से 3 जैक उसके पास जाते हैं? उसके लिए हम लिखते हैं 4 चूज 3 विच इज 4 फैक्टोरियल अवर 3 फैक्टोरियल अवर 4 माइनस 1 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये 1 फैक्टोरियल बन जाता है। तो आंसर इज 4। इसको अगर सॉल्व करें तो आंसर 4 आता है। सो इन 6 कॉम्बिनेशन के लिए उसके पास 4 कॉम्बिनेशन ऑफ जैक्स हैं। सो अगर ट्री डायग्राम के तरीके से सोचें तो उसके पास 6 कॉम्बिनेशंस हैं फॉर एज के लिए 6 हैं कि कौन से 2 ए उसके पास आते हैं। फिर हर एक कॉम्बिनेशन के लिए उसके पास आगे 4 जैक्स के कॉम्बिनेशन है। तो टोटल कॉम्बिनेशन जो मेरे पास बनते हैं बाय द मल्टीप्लिकेशन लॉ इज इक्वल टू 4 times 6 इज इक्वल टू 24। सो 24 ऐसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जिसमें ही इज गॉट 2 A's एंड 3 जैक्स। तो 24 कॉम्बिनेशन, ये नंबर हम याद रखेंगे। अब आप देखें, जब टोटल कार्ड्स हमारे पास 52 हैं, वो जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कोई भी शख्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और इस शख्स को देता है, तो उसके पास 5 कार्ड्स आते हैं। वो 5 कार्ड लाजमी नहीं यही हों कि जिसमें से 2 ए हों और 3 जैक हों। वो टोटल उसके पास कितने कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं? वो बना
52 में से 5 के कॉम्बिनेशंस कितने बन सकते हैं? हो सकता है उस चारों ए हो, फिर एक 2 आ जाए, एक ए हो, 4 2 हो, इस तरह के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 5 कार्ड्स के? तो वो बने हमारे पास 52 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल ओवर 52 माइनस 5 फैक्टोरियल, और ये बनता है नंबर कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 2 मिलियन के करीब है, 960। तो इतने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। कितने? यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 25 लाख 98,960 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 52 कार्ड में से। 5 जब कार्ड हम चूज करते हैं तो इतने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। सो टोटल सैंपल स्पेस में मेरे पास 5 के इतने कॉम्बिनेशन हैं। तो अगर इसकी सैंपल स्पेस बाय हैंड लिखनी पड़ जाए तो माशाल्लाह काफी बड़ी हो जाएगी। तो ये टोटल मेरे पास आगे, इसको मैं अगर n कह लूं, और जो मेरे फेवरेबल थे वो सिर्फ 24 थे, इसको अगर मैं s कह दूं तो मेरी प्रोबेबिलिटी बनती है s/n, विच इज 24/2598960, और ये नंबर आता है 0.9 इंटू 10⁻⁻⁵। तो ये इतना कम प्रोबेबिलिटी है ऐसा कार्ड्स आने की। किसी भी प्लेयर के पास ये कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स, यानी कि जिसमें से 2 ए हों और 3 जैक हों, उसके आने की प्रोबेबिलिटी इतनी कम है। सो दिस वाज द एग्जांपल, और ये उसका आंसर है, विच इज 0.9 इंटू 10⁵. Now let's discuss some theorems on probability. For A or B, 2 events, probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. तो हम इसको चेक करते हैं 2 तरीकों से। पहले हम ड्रॉ करते हैं एक Venn diagram, where the total area is S, this is a sample space, and we have an event A and another event B. Now probability of A union B would be will be, first of all, how to find A union B? It's all the area inclusive in A and B. Now what is the probability concept? It is that the area, if I was to find the probability of A, then it would be basically the area of this circle A divided by the total area of the sample space. ये बिल्कुल वैसे ही है अगर मैं एक sample space define करूं for rolling a dice which was equal to 1, 2, 3, 4, 5 and 6, in which all outcomes are equally likely. 1, 2, 3, 4, 5 and 6 are equally likely. And an event A is defined as odd numbers 1, 3 and 5, and an event B is defined as another number, all numbers less than 4. So 1, 2, 3 बन जाएगा. Now the probability of A in this case would be, because they are all equally likely, और मेरे फेवरेबल्स जो हैं वो 3 हैं, 1, 2, 3,
और टोटल जो है 1 2 3 4 5 6 हैं, तो इट विल बी 3/6. Similarly, probability of B would be 3/6 बिकॉज इसमें भी फेवरेबल्स या सक्सेसेस जो हैं 3 हैं और टोटल जो मेरे पास 6 हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स. अब इसी चीज को एक्सटेंड करते हैं यहाँ पे, तो क्या होता है कि जितने हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं इन एन इवेंट, हम उसको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस से डिवाइड करते हैं. वैसे ही ट्रांसलेट होता है कि एरिया ऑफ ए डिवाइड बाय द एरिया ऑफ द सैंपल स्पेस. ये एक हाइपोथेटिकली मैं बताना चाह रहा हूं. अब होगा क्या कि अगर मैं ए यूनियन बी लूं, तो ये स्लांट रीजन जितना है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए यूनियन बी को. अब ए यूनियन बी को जब ये रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें अगर देखें ये टोटल एरिया जो होगा वो ए का जमा बी का एरिया होगा, मगर ये जो इंटरसेक्शन वाला एरिया है ये ट्वाइस काउंट हो रहा है, बिकॉज जब एक दफा ए में काउंट होगा फिर दूसरी दफा बी में काउंट होगा, तो हम एक दफा इस इंटरसेक्शन वाले एरिया को इसमें से माइनस कर लेते हैं सो दैट ये एरिया डबल ना हो. तो फिर ए वुड बी ए प्लस बी का एरिया माइनस द ए इंटरसेक्शन बी का एरिया, तो दैट विल गिव मी द ए यूनियन बी. सो अगर मैं इस चीज को यहां पे अप्लाई करूं तो क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल ली, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल ली. अब हम करते हैं ए यूनियन बी निकालते हैं, विच इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A union B would be equal to 4. इसकी आउटकम्स हैं A union B की, our total outcomes which was 6. अब अगर इस फार्मूले को मैं यूज करूं जो हमने अभी लॉ दिया है माइनस इंटरसेक्शन वाला, तो उसके लिए मुझे पहले क्या करना होगा? A इंटरसेक्शन B निकालना होगा. और A इंटरसेक्शन B इस केस में क्या है? 1 and 3 है, दो एलिमेंट्स हैं जो कि A में भी मौजूद हैं और बी में भी मौजूद है. तो इनकी प्रोबेबिलिटी जो होगी ए इंटरसेक्शन बी वो बनेगी 2/6. अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालूं यूजिंग माय न्यू थ्योरम, विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, it would be equal to probability of A क्या थी? 3/6 plus probability of B which was again 3/6 minus probability of A intersection B which was 2/6, and the answer comes out to be 3 plus 3 6 minus 2 4/6. अब इस केस में ये दोनों सेम आते हैं, चाहे हम पहले यूनियन ले लें बाद में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें या इस तरह से करें, मगर इसमें डिसजॉइंट होने की जरूरत नहीं है. अगर ये डिसजॉइंट होते तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 0 आ जाती, बिकॉज वो कोई कॉमन एलिमेंट एग्जिस्ट ही ना करता. तो उस केस में फिर ये फार्मूला रिड्यूस हो जाता है. इस केस में तो डिसजॉइंट के लिए जो कंडीशन थी वो क्या थी? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू अ नल सेट एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नल सेट इज इक्वल टू 0. So ये reduce हो जाता है. And lastly, and this is true for any number of events A, B, C, D, E, F. आप जहां तक मर्जी चले जाएं, ये लॉ उन सब पे एप्लीकेबल है. नेक्स्ट जी, थ्योरम है if A1, A2 up till AN are partitions of a sample space. अब पार्टीशंस ऑफ द सैंपल स्पेस का मतलब यह है कि एक मेरे पास सैंपल स्पेस है S, उसके हम पार्टीशन कर लेते हैं. लेट्स से इस तरह के मैंने रफ से पार्टीशन बना रहा हूं.
जिसमें से ये अगर A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, A5, A6, A7, A8, तो इन सब को अगर मैं ऐड करूं तो वो टोटल सैंपल स्पेस बन जाती है। पार्टीशन होने का मतलब यह है कि कोई ओवरलैपिंग नहीं है और कोई गैप्स भी नहीं है। सैंपल स्पेस कंप्लीटली कवर्ड है विद ऑल द इंडिविजुअल इवेंट्स। ऐसी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर ये सैंपल स्पेस मेरी वही डाइस वाली एग्जांपल है कि डाइस के आउटकम्स हैं 4, 5 और 6, देन अगर A1 मैं डिफाइन करता हूँ 1 and 2 एंड A2 डिफाइन करता हूँ 3 and 4 और A3 डिफाइन करता हूँ 5 एंड A4 डिफाइन करता हूँ 6, तो अगर मैं इन सब को ऐड करूँ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4, तो इनको ऐड करें आप तो अगेन मेरे पास बन जाता है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तमाम एलिमेंट्स मेरे पास पूरे होते हैं विच इज इक्वल टू S। तो ये हम कह सकते हैं कि हमने इस प्रॉब्लम में सैंपल स्पेस S को 4 इवेंट्स में पार्टीशन कर लिया, तोड़ दिया, बराबर ना हो मगर कोई चीज हमने छोड़ी नहीं और में ओवरलैपिंग भी नहीं थी, डिसजॉइंट भी थे और देयर वाज नो एलिमेंट ऑफ S व्हिच वाज लेफ्ट आउट, सारे के सारे इंक्लूडेड हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम में तो वो क्या कहते हैं जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 यूनियन एंड अप टिल प्रोबेबिलिटी ऑफ AN इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 plus probability of A2 plus probability of A3 up till plus probability of AN, and it should be equal to probability of S which is equal to 1. Because ये सारे ऐड हो गए S के बराबर बनते हैं तो probability of S क्योंकि 1 है तो इन सब की probability भी equal to 1 हो जाएगी। तो इस केस में भी ये आपको नजर आ रहा है कि जब इन सब को हम यूनियन करेंगे तो टोटल एरिया ऑफ द सैंपल स्पेस कवर हो जाएगा और वो जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो जवाब हमारा 1 हो जाएगा। लेट्स डू सम एग्जांपल्स। आफ्टर बीइंग इंटरव्यूड एट 2 कंपनीज, जॉन assesses that his probability of getting an offer from company A is 0.8 and the probability that he gets an offer from company B is 0.6. तो 2 कंपनीज में उसमें इंटरव्यू दिया तो चांसेस हैं कि 0.8 प्रोबेबिलिटी है कि ही विल गेट अ जॉब ऑफर फ्रॉम कंपनी ए एंड 0.6 प्रोबेबिलिटी है टू गेट अ जॉब ऑफर फ्रॉम कंपनी बी। If on the other hand he believes that the probability that he will get offer from both companies is 0.5, उसे लगता है कि दोनों कंपनीज से अगर उसे जॉब ऑफर आ जाएगी तो वो 0.5 है। What is the probability that he will get at least one offer from these 2 companies? What is the probability that he will get at least one offer from these 2 companies? अब जरा इसको फॉर्मुलाइज करते हैं। तो probability of getting a job offer from company A is given as 0.8, then probability of a job offer from company B is given as 0.6, and the important part which we should not miss, that means John believes that the probability that he will get offer from both companies is 0.5. both companies का मतलब क्या है कि उसे A से भी ऑफर मिलेगी और B से भी मिल जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.5 है कि दोनों में से उसे ऑफर मिल रही है और
की चांसेस क्या है, 0.5 प्रोबेबिलिटी है उस चीज की। नाउ व्हाट्स द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज व्हाट इज द probability that he will get at least one offer from these two companies, at least one offer from these two companies. So दोनों कंपनीज को हम यूनियन करें तो हमें पता चल जाएगा कितनी ऑफर आनी है इसको। तो बेसिक क्वेश्चन है कि दोनों कंपनी से उसे एटलीस्ट ऑफर मिल जाए। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों कंपनी में से भी उसे ऑफर मिल जाए। तो वो क्या है, इट शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और क्योंकि कॉमनैलिटी भी है तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट एट लीस्ट वन ऑफर फ्रॉम दीज टू कंपनीज, एट लीस्ट वन ऑफर कि एटलीस्ट एक ऑफर से मिल जाए, ए से मिल जाए, बी से मिल जाए, और हमने सब्ट्रैक्ट करना है उसको माइनस में। तो ये बना 0.8 प्लस 0.6 माइनस 0.5 which is equal to 0.9. So there are 0.9, its probability is 0.9 to get an offer from one of those companies. So here we have applied the additive rule. क्या रूल अप्लाई किया प्रोबेबिलिटी का हमने, एडिटिव रूल। और वो रूल क्या था, वो ये था कि यूनियन के बाद हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो बनती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेट्स गो टू नेक्स्ट एग्जांपल which is what is the probability of getting a total of 7 or 11 when a pair of fair die are tossed. 7 और 11 हमने देखना है when a fair die is tossed. अब देखें, अब एक डाई अगर पेयर ऑफ डाई, अगर दो डाइस है मेरे पास, उनको जब हम रोल करते हैं तो पहले पे भी 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है और दूसरे डाइस पे भी 1 से 6 तक कुछ आ सकता है। इन दोनों को अगर ऐड करें तो आंसर मेरा 7 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। अब अगर देखें तो ये हमने ट्री डायग्राम बनाया था इस चीज़ का। तो अगर हम दो डाइस लें, डाई 1 एंड डाई 2, अगर डाई 1 पे 1 आए और डाई 2 पे 6 आए तो मेरा सम अगेन 7 बनता है। अगर डाई 1 पे 2 आए और डाई 2 पे 5 आए तब भी 7 बनता है। डाई 1 पे 3 आए और डाई 2 पे 4 आए तब भी 7। इसी तरह 4 प्लस 3 भी 7 एंड 5 प्लस 2 भी 7 एंड 6 प्लस 1 भी 7। तो हमारे पास 6 ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जिसका टोटल जो है वो 7 बनता है। तो हम अगर सैंपल स्पेस लिखें इस इवेंट की ए की तो वो बनेगी 1 6 2 6 2 5 3 4 4 and 3 5 and 2 and 6 and 1। और टोटल जो हमारे पास परम्यूटेशंस बनती हैं इसकी बाय द मल्टीप्लिकेशन रूल, तो पहले डाई की भी n1 6 चॉइसेस हैं और n2 की भी सेकंड डाई की भी 6 हैं। तो n1 टाइम्स n2 is equal to 36. So probability of getting 7, that means the sum of both die is equal to, क्योंकि 6 हमारे पास ऐसे फेवरेबल कॉम्बिनेशंस हैं और टोटल हैं
36 इज इक्वल टू 1/6। सिमिलरली 11 आने के लिए अगर हम इसको सॉल्व करें, अब 11 के लिए इस रीजन में व्हेन द सम डाई 1 प्लस डाई 2 इज इक्वल टू 11, तो वो कौन से कॉम्बिनेशन बनते हैं कि पहली पे 6 आ सकता है, दूसरी पे 5, तो 11 बनता है। पहली पे 5 आ जाए और दूसरी पे 6 आ जाए तब 11 बनता है। इसके अलावा कोई और नहीं होता, क्योंकि मैक्सिमम 6 आ सकता है, तो एक 6 प्लस 5 11, तो 2 बनते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 11 शुड बी इक्वल टू 2, क्योंकि हमारे पास 2 कॉम्बिनेशंस बन रहे थे, 2 ओवर 36 विच इज 1/18। अब वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of getting a total of 7 or 11, 7 या 11. So that means its probability is कि ये अगर A था, ये इवेंट जो था वो A था और डाई वाला इवेंट जो था वो B था, तो probability of A union B will be equal to probability of A plus probability of B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारा रूल था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई 1/6 प्लस 1/18। अब इंटरसेक्शन नहीं हो सकती, बिकॉज जब ये कॉम्बिनेशंस आएंगे 7 वाले तो 11 वाले नहीं आ सकते, और जब 11 वाले कॉम्बिनेशंस आएंगे तो 7 वाले आ सकते, तो ये तो हो गया 0। तो बेसिकली ये डिसजॉइंट सेट थे, तो उस केस में हमारी प्रोबेबिलिटी जो बनती है वो बनती है 2/9। तो इसमें हमें माइनस करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज ऑलरेडी ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो अगर रिपीट करें हम, तो 7 आने के लिए हमारे पास 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन रहे थे, और टोटल जो हमारे पास ऑर्डर थे वो 36 थे इन द सैंपल स्पेस। तो 6 over 36 gave me the probability of getting a 7, and to get a total of 11 points on 2 die, we had only 2 permutations, 6 5 and 5 6, और टोटल जो हमारे पास आउटकम्स थी इन द सैंपल स्पेस वो 36 थी, तो probability of getting 11 was 2/36 which is 1/8, और टोटल फेवरेबल आउटकम्स जो हैं वो probability of A union B हैं, तो उससे आप निकाल सकते हैं। ऑन द अदर हैंड आप ये देखें कि टोटल हमारे पास फेवरेबल जो आउटकम्स हैं वो 8 हैं, 6 7 की और 2 11 की। तो 8/36 हमारे पास एक और आंसर आता है जो कि अगेन 2/9 बनता है, और ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल है बिकॉज ये डिसजॉइंट सेट्स थे। If the probabilities are respectively 0.9, 0.09, 0.15, 0.21 and 0.23 that a person purchasing a new automobile will choose the color green, white, red or blue, what is the probability that a given buyer will purchase a new automobile that comes in one of those colors? Very simple. आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास 4 कलर्स हैं गाड़ियों के अवेलेबल। कोई शख्स अगर गाड़ी खरीदता है तो प्रोबेबिलिटी कि वो ग्रीन कलर चूज करेगा इज गिवन एज 0.09, प्रोबेबिलिटी दैट ही विल चूज अ वाइट कलर इज गिवन एज 0.15, यहाँ पे देखें वाइट और सेकेंड वन वाइट, and probability of red color is 0.21 and probability of blue color is 0.23. ये blue and blue. So if the probabilities are respectively 0.09, 0.015,
sorry, respectively 0.09, 0.15, 0.21 and 0.23, that a person purchasing a new automobile will choose the color green, white, red or blue. What is the probability that a given buyer will purchase a new automobile that comes in one of those colors? अब बात यह कि इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप सोचें कि बहुत से कलर्स की गाड़ियां बनती हैं, मगर हमें सिर्फ ये 4 कलर्स के प्रोबेबिलिटीज दी गई हैं और पूछा यह जा रहा है कि बायर है, गाड़ी खरीदने जाता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इनमें से कोई एक कलर चूज करेगा? क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनमें से कोई एक कलर चूज करेगा? तो प्रॉब्लम बड़ी सिंपल है कि वी वांट टू नो कि ग्रीन हो या वाइट हो यूनियन, या रेड हो या ब्लू हो। तो जब या यानी कि और का लफ्ज यूज होता है तो हम यूनियन यूज कर रहे हैं, ग्रीन यूनियन वाइट यूनियन आर यूनियन ब्लू ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब दूसरी बात यह कि अगर गाड़ी ग्रीन है तो वाइट नहीं हो सकती, वाइट है तो रेड नहीं हो सकती, वाइट है तो ग्रीन नहीं हो सकती। इसका मतलब है ये डिसजॉइंट भी हैं। तो इस केस में हम ये प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम सेकंड जो लॉ था वो यूज कर रहे हैं जिसमें डिसजॉइंट है। तो इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू। इन तमाम प्रोबेबिलिटीज को जब आप ऐड करते हैं वो 15 प्लस 0.21 प्लस 0.23 शुड बी इक्वल टू 0.68। हमने यहां पे माइनस क्यों नहीं किया इंटरसेक्शन को? बिकॉज इंटरसेक्शन के लिए उनका डिसजॉइंट अगर हैं तो इंटरसेक्शन का लफ्ज नहीं आता, इसके माइनस वाली प्रोबेबिलिटी जो इंटरसेक्शन के साथ आती है वो नहीं आती। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं प्लीज। रादर थ्योरम देखते हैं। इफ ए एंड ए प्राइम आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम, दैट मीन्स द कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। इसका प्रूफ बड़ा सिंपल है। लेट्स से के we have a sample space S and we have a event A। तो A complement क्या होगा? Everything in S which is not in A। जो A में मौजूद नहीं है वो सारा का सारा जो ये slanted line है वो A complement है। अब हम we know that जो लॉ हमने अभी किया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, वो क्या था? इट वाज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर इस केस में देखें, अगर मैं ये निकालना चाहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो वो क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए और ए इंटरसेक्शन तो कुछ डिसजॉइंट होता है, ए और ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा डिसजॉइंट होता है, तो ये तो हो गया 0। सो इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अब दूसरी बात यह कि यूनियन ऑफ ए विद ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एस एंड दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। दैट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट और ए को जब ऐड करूं तो टोटल सैंपल स्पेस बन जाती है। तो इन सबको ऐड करूं तो ये टोटल सैंपल स्पेस बन जाती है इज इक्वल टू एस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एस we know is always equal to 1. So hence it is proved that probability of A plus probability of A complement is always equal to 1. इसको हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं probabilities कैलकुलेट करने में। Why? Because अगर हमने probability of A कैलकुलेट करनी है मगर वो डिफ़िकल्ट हो रहा है, उसको कैलकुलेट करना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, तो हम क्या करते हैं probability of A complement अगर ईजी है तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं
तो फिर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना इसलिए इजी हो जाता है, इट विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। इस फॉर्मूले से हम ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में ये लॉ यूज किया गया है। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑटोमोबाइल मैकेनिक विल सर्व 3, 4, 5, 6, 7 or 8 or more cars on any given work day are respectively 0.12, 0.19, 0.28, 0.24, 0.10 and 0.07. What is the probability that he will service at least 5 cars on his next day at work? Very simple. कि अगर on a typical day एक दिन है, मंडे का दिन है, वो probability of servicing 3 cars है कि उसके पास 3 गाड़ियां ठीक होनी आती है, वो 0.12 है। probability of servicing 4 car is 0.19। किसी भी दिन, मैंने मंडे का नाम लिया, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ मंडे को ही, किसी भी दिन वो पूरा साल काम करता रहता है। किसी दिन 3 गाड़ियां आती हैं, किसी दिन 4 आती हैं, किसी दिन 5 ठीक होनी आती हैं, किसी दिन 8 आ जाती हैं। तो वो जब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है at the end of the year or after very long years, he finds out that probability of servicing 3 cars is 0.12, 4 cars is 0.19, probability of servicing 5 cars is 0.28, probability of servicing 6 cars is equal to 0.24, probability of servicing 7 cars is equal to 0.1, काफी कम probability है इसकी, और probability of 8 or more cars, that means greater than or equal to 8 is equal to 0.07। कभी 8 गाड़ियां आ जाती हैं और उससे ज्यादा गाड़ियां भी आए तो उसको वो कहते हैं 0.7 probability है उसकी। तो ये तो हमने तमाम probabilities लिख ली। अब what is the probability that he will service at least 5 cars on the next day at work? अगर कल वो सुबह जाता है अपने ऑफिस तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 5 गाड़ियों की सर्विस करेगा? तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका हम ये पुराना वाला इवेंट करते हैं। इवेंट ये है, इवेंट इज 5 और मोर कार्स। तो लेट्स से टोटल सैंपल स्पेस क्या है मेरे पास? टोटल सैंपल स्पेस क्या है? अगर मैं 3 से शुरू करूं, मैंने कहा 0 गाड़ियां, 1 गाड़ी, 2, 3, 4, 5 अप टिल इन्फिनिटी गाड़ियां उसके पास आ सकती हैं। हमें जो प्रोबेबिलिटीज गिवन है वो 3, 4, 5, 6, 7, 8 और उससे आगे तक की गिवन है। तो अब हम देखना चाह रहे हैं कि 5 और मोर गाड़ियां आने की क्या चांसेस हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 5 से लेके 6, 7, 8 अप टिल इन्फिनिटी को ऐड करना होगा तमाम प्रोबेबिलिटीज को। उसका दूसरा तरीका है कि हम एक और इवेंट डिफाइन करते हैं, ई प्राइम विच इज लेस देन 5 कार्स। लेस देन 5 कार्स में यहाँ देखें क्या आता है, 0, 1, 2, 3। हमें 0, 1, 2 उसने नहीं दिया हुआ, इसलिए हम एज्यूम करते हैं कि कभी 3 से कम गाड़ियां नहीं आ रही उसके पास। तो लेस देन 5 कार्स में मेरे पास या 3 गाड़ियां होंगी या 4 होंगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कार्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 कार्स, एंड दैट कम्स आउट टू बी 0.12 plus 0.19 which is equal to 0.31। रिमेंबर ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, बिकॉज ये वो
प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग लेस देन 5 कार्स। हमारे लिए क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल सर्विस एटलीस्ट 5 कार्स ऑन हिज नेक्स्ट डे एट वर्क, एटलीस्ट 5 कार्स। सो हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई complement is equal to 1, and probability of E, which is the desired event, and the desired event was less than what? Less than 5 cars? No, that was E complement. We wanted 5 or more cars. So probability of E is 5 or more cars is equal to 1 minus probability of E complement, which is 1 minus 0.31, which is equal to 0.69. That's the probability of event E, which is 5 or more cars, and it is 0.69. अब अगर इसी प्रॉब्लम को हमने लॉ यूज किया, थ्योरम यूज किया और उससे हमने कैलकुलेट किया, अगर देखें तो काम क्या करना था, 5 और मोर कार्स। तो अगर मैं 5, 6, 7 और 8 और 8 से ज्यादा गाड़ियों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करूं यहां पे, तो इसका आंसर भी 0.69 ही आता है। सो दिस इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। मगर हमने इस तरीके से नहीं किया कि हमने क्या किया, पहले हमने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली और फिर उसको दोनों को सम करके 1 के बराबर रख के हमने कर लिया। सो ये दोनों तरीकों से हो सकता है। आज आपने देखा कि हम प्रोबेबिलिटीज के एडिशन कैसे कर सकते हैं, और जब डिसजॉइंट हो इवेंट्स तो क्या करते हैं, और इस केस में क्योंकि अगर 5 गाड़ियां आती हैं तो उस दिन 6 गाड़ियां नहीं आ सकती, ये दोनों डिसजॉइंट इवेंट है, इसलिए हम उनको डायरेक्टली ऐड कर रहे थे प्रोबेबिलिटीज को। So this is how you can calculate different probabilities of events or outcomes. In the next lecture, we will further do some more examples and then continue with this concept. All the examples and reading material can be found in the reference Probability and Statistics for Engineers and Scientists by Walpole. Allah Hafiz.